given a longer time, what I have spent in the company, I'm sure like you may be having a lot of exposure to the market, even more than me. So you know that the opportunity in the market can come anytime. मतलब मार्केट में कभी भी आपको परचेज करने का मौका कभी भी आ सकता है, कभी भी आपको कोई भी स्टॉक गिरा हुआ दिख सकता है, प्राइस गिरा हुआ दिख सकता है और आपको लगे कि हाँ दिस इज द राइट टाइम टू बाय. सो एट दोज टाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू हैव सफिशिएंट फंड्स. नहीं तो अगर शेयर प्राइस अच्छा दिख रहा है आपको परचेज करना है और आपके पास अगर पैसे ही नहीं है तो डेफिनेटली यू विल यूज दैट अपॉर्चुनिटी. आप उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे. मतलब मार्केट ने हमें मौका दिया बाय करने का, बट हमने मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए बिकॉज हमारे पास या तो पैसे नहीं थे या तो हमारे पास लिमिट वगैरह नहीं था हमारे पास अकाउंट में. तो MTF इज़ अ सोल्यूशन टू दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो MTF में आप स्टॉक्स जब भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे मार्केट में और अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो यू कैन बाय स्टॉक्स विदाउट वरिंग अबाउट द फंड्स. आप पैसे बाद में ला के भी पे कर सकते हो. मतलब हो सकता है कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो या फिर पैसे किसी और फॉर दैट मनी टू कम इन द प्राइमरी ट्रेडिंग अकाउंट. सो हेंस दिस इज अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर दीज प्रॉब्लम्स. व्हेन यू सी एनी अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट बट यू डोंट हैव फंड्स, so you can give your customers time to arrange for funds and immediately go and invest in that stock and then when you find the opportunity. So that is something which we have, which we provide as a MTF. It's a solution. So we call this as a stock market investment solution. So this is something which we have to offer to all our clients. And the second point which we will discuss in this call is shares as margin. So shares as margin is a product where you can generate limits by pledging the shares. जैसे मान लीजिए आपके पास डीमैट में 10 लाख रुपए का शेयर्स है तो आप 10 लाख रुपए का शेयर्स प्लेज करके आप उस पर 8.5 लाख रुपीस तक का लिमिट जनरेट कर सकते हो. यू कैन जनरेट अप टू 85% ऑफ द होल्डिंग वैल्यू एज लिमिट एंड दैट लिमिट यू कैन यूज टू परचेज फर्दर शेयर्स इन MTF. MTF के द्वारा आप उससे और शेयर्स खरीद सकते हैं. सो दिस इज समथिंग विच विल कवर. यू कैन यूज दैट लिमिट टू ट्रेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस. अगर आपको फ्यूचर्स में कुछ होल्डिंग लेना है या फिर अगर आपको ऑप्शंस में कुछ स्टॉक्स ऑप्शंस या इंडेक्स ऑप्शंस बेचना है, सो फॉर सेलिंग ऑप्शंस यू नीड मार्जिन. सो यू कैन यूज दिस मार्जिन विच इज जनरेटेड बाय प्लेजिंग द शेयर्स थ्रू आवर शेयर्स एंड मार्जिन प्रोडक्ट. So both these things we will be covering today in today's call, and we will also cover all the aspects of this particular product, starting from the features, how to place order, and we will also cover the charges. कि charges कितना है, and so that is all which we all plan to do and cover in this short span of time. So now I will hand over the call to my colleague Darshan. He is the product manager for these two products. And over to you, Darshan. Thank you. Yes, thank you, sir. Good evening, everyone. At present, in a minute, I will check with the website version whether it is allowing us to place a live market order or not. Still, it is not allowing. So currently our website is not available for placing a order because the market has just closed. So generally website पे 5 बजे के बाद आप order डाल सकते हो. So hence we were checking that. So we will just start with the features and the offering which we have. So इसमें Darshan, I will also request you to also give a demo on the calculator which is there on the website. And Yes. So it's better that if you can route everything through the website, because website is something which is accessible by all our users and all the participants. They can go to this page. So this page which you are now looking at on the screen, ये हमारा MTF का लैंडिंग पेज है. तो ये पेज हमारे वेबसाइट पे है. यू कैन गो टू www.icicidirect.com. वहाँ जाने के बाद आप इक्विटी पे क्लिक करिए. Darshan, you can please click on equity. या फिर आप Sir, sorry to interrupt, but there's one question on the chat box that with pledged share limit can we enter the MTF trade? Yes, we can do that.
So from the pledged shares limit, we can enter into MTF trade, and we can do. We can also do intraday transactions in all the products. Yeah. So even a longer time. तो क्या अच्छा दिख रहा है आपको आपको परचेज करना है ऐसे नहीं क्या? Yes, yes. तो that kind of problem. So MTF में फ्यूचर मार्केट में buy stocks without worrying about the funds. In case it is taking time, I can do it. System is connecting with the web page. So I have shared my screen. Hope everybody are able to see the screen. Yes, sir. The screen is Yeah. visible. So this is our website www.icicidirect.com. आपको इस पे लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है. आप यहाँ पर आइए और ये इक्विटी का लिंक दिख रहा है, आप ये इक्विटी पे क्लिक करिए. The moment you click on equity, here you will find options. In this option, there is a section called products. You go to products, you scroll down, and here we have these two links, margin funding and share size margin. So now we will cover margin funding. So on margin funding, as I said, you can invest even without having sufficient funds. So I just want to give you a quick demo of how it works. तो यहाँ पर हमारे वेबसाइट पे आप लॉगिन नहीं भी करेंगे तब भी एक कैलकुलेटर यू विल बी एबल टू सी. यू कैन यूज दिस कैलकुलेटर. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वांट टू बाय आईटीसी. मुझे आईटीसी के शेयर खरीदने हैं और मुझे 1000 शेयर खरीदना है. मैं बस यहाँ पर स्टॉक का नाम, क्वांटिटी डालूंगा और कैलकुलेट पे क्लिक करते ही ये मुझे बता देगा कि हाउ मच मनी यू वांट. सो टू बाय 2.6 lakhs वर्थ ऑफ शेयर्स, I just need 64,000 rupees ka fund in my account. This 64,000 rupees can be in cash or it can be in way of limit which you generate through share size margin. यानी अगर आप 80,000 रुपए तक का शेयर्स प्लेज करोगे तो उस पर आपको लगभग 64,000 का लिमिट मिलेगा. और उस 64,000 के लिमिट से जो या तो शेयर साइज मार्जिन के लिमिट के द्वारा हो सकता है या तो वो आपका कैश अमाउंट हो सकता है, उसके द्वारा आप 2.67 lakhs worth of shares you can buy. So you can buy up to 4.17 times ITC with your money. So similarly you can check the same for any stock you want. जैसे मुझे अगर पेटीएम खरीदना है तो I will just select the stock. Let's say I want to buy 100 quantities. I click on calculate. So you can buy 2.44 times your funds. 25,000 रुपए से आप 61,000 रुपीज का पेटीएम खरीद सकते हैं थ्रू MTF. तो जो बीच का बचा हुआ फंड है 36,400. सो दिस इज द फंडेड अमाउंट which ICICI Direct is doing the funding, and hence this product is called margin funding because we are providing you funding to purchase the shares which you want to buy. So there's one question that can this calculator be useful for calculating interest as well? No, as of now, interest calculator is not there here. So this calculator can only show you that आप अपने पैसे से कितना stocks खरीद सकते हो. So you can type any stock you want, any quantity you want, and do the calculation. It will show you. And one thing just wanted to mention that इस पे जो interest charge होता है, that is as low as 7.9% per annum, which is मात्र 22 रुपए एक दिन का लगता है. अगर आप लाख रुपए का फंडिंग अमाउंट है तो लाख रुपए के फंडिंग अमाउंट पे मात्र 22 रुपए का आपको इंटरेस्ट लगता है एक दिन का. और ये इंटरेस्ट जो चार्ज होता है ये आपको तीसरे दिन से चार्ज होता है. अगर आपने आज खरीदा है तो ये आपको T+3 डे से आपको इंटरेस्ट लगना चालू होगा. सो नॉट एग्जैक्टली T+3 बट इट विल बी फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ T+2. जो आपका बाइंग सेटलमेंट डे है, बाइंग सेटलमेंट के अगले दिन से आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा. सो दैट वाज all about this product, and now Darshan, I will like to hand over this call to you so that you can explain how the order placement can be done, and you can also elaborate other features which are there on the website with respect to MTF. Yes, sir. So I will just unshare my screen. Yeah, thanks. So just to answer the question, this is exchange margin trading funding. Exchange जो ऑफर करता है margin funding, it is that product.
द मेन बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दैट कि आप आज पोजीशन लेते हो, वो पोजीशन का पेमेंट आप नहीं भी करते तो भी आप ये पोजीशन को 365 डेज तक होल्ड कर सकते हो। मतलब आपके पास पूरा एक साल है कि आपने वो पोजीशन लेके उसको होल्ड करना है, तो 365 डेज तक आप होल्ड कीजिए। सिर्फ उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा जो फंडिंग आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने दिया है उसके ऊपर। जो हमने कैलकुलेटर के अंदर हमने काउंट करके देखा था फॉर आईटीसी, राइट, कि जैसे आईटीसी का मुझे 100 शेयर लेना है, तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि 6,427 रुपीज मुझे पे करना है और 20,353 रुपीज द फंडिंग जो मुझे आईसीआईसीआई डायरेक्ट से मिल रहा है उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना है। और वो इंटरेस्ट भी क्या है, तो एज लो एज 7.9% इन अ ईयर। तो उसमें आपने सपोज 20 दिन पोजीशन होल्ड की, 20 दिन के बाद आपने पैसा दे दिया, तो आपको उतने ही दिन, जितने दिन आपने ये फंडिंग यूज किया है उतने ही दिन आप इंटरेस्ट चार्ज उसका देना रहेगा, वो भी पर डे के हिसाब से रहेगा। ठीक है, और इन बिटवीन आप कभी भी उसको स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे, या आप उसको कभी भी ऐसा है कि डिलीवरी लेना है तो डिलीवरी भी ले पाएंगे। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो 6,427 उतना भी पैसा मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए अगर आप हमारा शेयर एज मार्जिन का फीचर है कि जिसमें आप अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक को ब्लॉक करके भी ये 6,427 रुपीज है वो आप इनिशियल मार्जिन दे सकते हो। तो फिर आपको इंटरेस्ट अमाउंट किस पे लगेगा, तो ये जो 20,000 रुपए है जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपका रिमेनिंग अमाउंट स्पॉन्सर कर रहा है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, एंड ये जो 6,427 रुपीज जो आपने शेयर्स के फॉर्म में कंपनी को दिया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेयर्स एज मार्जिन के अंदर। आप इनिशियल मार्जिन भी उसके सामने फंडिंग के तौर पे यूज कर सकते हो। अभी हमारे लिए जो बेसिक ये चीज का मेन कंसर्न क्या है कि हमको अगर ये फैसिलिटी यूज करना है तो हमको ये कैसे पता चलेगा, कहां जाके उसको यूज करना है, या उसका ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे रहता है, तो वो मैं आपको एक स्नैपशॉट, मतलब अभी हमारा वेबसाइट लाइव नहीं है इसीलिए मैं आपको सिर्फ उसके स्नैपशॉट्स दिखाता हूं कि जिसके चलते आप उसको व्यू कर पाएंगे कि वो कैसे हम उसमें ऑर्डर प्लेस करते थे। जब भी आप वेबसाइट वर्जन लॉगिन करते हो तो सबसे पहले ऊपर इक्विटी सेक्शन में आपको क्लिक करना है। इक्विटी सेक्शन में क्लिक करते ही प्लेस ऑर्डर पे आप जाओगे। प्लेस ऑर्डर में आपको यहां पे सेकंड टैब दिखाई दे रहा है, दैट इज फंडिंग प्रोडक्ट का पेज है बाय ऑर्डर का। उसमें ऑर्डर विंडो I'm एकदम sorry, sir. स्मूथ एंड Sorry क्लियर। to disturb you. I think your screen is not visible, sir. Still, we able to see that the margin trading fund only. गिव मी अ मिनट, आई विल रीशेयर। नाउ इज इट विजिबल? Yes, yes. ओके। एमटीएफ के जब बाय ऑर्डर पे आप जाते हो तो ये हमारा एकदम क्लियर एंड इजी वे है कि यहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट में आपको सिर्फ माइन्यूट 3-4 डिटेल्स है जो फिल करना है। सबसे पहले आप जाओगे, आपको कौन से एक्सचेंज में बाय करना है। सपोज मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मुझे एनएससी में बाय करना है। सेकेंड टैब है कि जिसमें आपको दिखना है कि कौन सा स्टॉक बाय करना है। तो मैं डिसाइड कर रहा हूं कि सपोज मुझे रिलायंस बाय करना है, तो मैं यहाँ स्टॉक के अंदर जो फीचर है वहां पे मैं रिलायंस फिल कर दूंगा। कितने शेयर्स बाय करना है तो वहां पे मैं क्वांटिटी फिल कर दूंगा, 100 शेयर्स बाय करना है। और कौन से रेट पे बाय करना है, या मार्केट रेट से लेना है या कैश, अभी कोई स्पेसिफिक लिमिट डाल के लेना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे लिमिट पे लेना है और मैंने मेरा प्राइस कोट कर दिया कि मुझे 2575 पे लेना है। जब मैं उसको बाय पे प्रोसीड करता हूं तो मुझे ये ऑर्डर वेरिफिकेशन का पेज आएगा जहां पे मुझे दिखाई देगा कि आप 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस बाय करना चाहते हो, जिसमें आपको इनिशियल मार्जिन 26% लग रहा है। ठीक है, तो आपका टोटल ट्रेड वैल्यू 100 शेयर्स का 2575 पे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो 2,57,500 रुपए हो रहा है और उसका 26% ही आपको अभी देना है। मैं उसमें उसको प्रोसीड कर दूंगा तो इमीडिएटली अगर मेरे बैंक अकाउंट में फंड नहीं है, मतलब इक्विटी में पैसा मैंने अलोकेट नहीं किया है, तो वो मुझे पॉपअप दे रहा है कि आपका इतना फंड आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं उसको भी ओके कर लेता हूं तो मुझे इमीडिएटली
आपका ऑर्डर जो Uh, प्लेस किया वो सक्सेसफुली एक्सचेंज में प्लेस हो चुका है. यस. Please continue. बीच में आपका आवाज थोड़ा सा Okay. ब्रेक हो रहा था, but now it's smooth now. ओके. अगर मुझे वो देखना है कि वो ऑर्डर कहां दिखेगा, तो मैं उसके लिए क्लिक करूंगा इक्विटी के अंदर. ऑर्डर बुक का ऑप्शन है, ऑर्डर बुक में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिलायंस 100 शेयर्स बाय करने का ऑर्डर है जो अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. वहां पे ऑप्शन है मॉडिफाई और कैंसल एंड रीऑर्डर. अगर मुझे उसमें कोई प्राइस चेंज करना है तो मैं मॉडिफाई में जाके वापस मेरा कोई प्राइस क्वांटिटी चेंज करना है तो कर सकता हूं. अगर मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करना है तो मैं यहां से कैंसिल भी कर सकता हूं. और अगर मुझे यही ऑर्डर को रिप्लेस करना है तो मैं रीऑर्डर में जाके वापस सेम स्क्रिप्ट के अंदर मैं उसमें नया ऑर्डर भी प्लेस कर सकता हूं. तो ये हो गया हमारा ऑर्डर प्लेसमेंट. अभी अज्यूम करते हैं कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है तो मुझे कैसे दिखेगा या उसको मैं कहां से स्क्वायर ऑफ कर पाऊंगा. तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो मैं इक्विटी के अंदर ओपन पोजीशन में चला गया. जब आप ओपन पोजीशन में जाते हो, जब आप सपोज आज फर्स्ट डे है, जब आप मंडे है सपोज और मंडे आपने कोई पोजीशन इनिशिएट किया है तो वो पोजीशन आपको मार्जिन के अंदर दिखाई देती है. फर्स्ट डे को जब आपने बाय किया है तो उस दिन आपको वो मार्जिन के अंदर दिखाई देगी और फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वो पोजीशन आपको एमटीएफ के अंदर दिखाई देना स्टार्ट होगा. ठीक है. तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ये पोजीशन मुझे एमटीएफ में दिखाई देगी. तो फर्स्ट डे जैसे आज मैंने बाय किया है तो मैं मार्जिन में जाऊंगा, वहां पे मुझे दिखाई देगा कि आपके 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस बाय हो चुके हैं. अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे उसको स्क्वायर ऑफ करना है. स्क्वायर ऑफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मुझे राइट साइड पे आप देखोगे यहाँ पे एक्शन के अंदर ऑप्शन है स्क्वायर ऑफ एंड एड मार्जिन. मैं स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करके उसके अंदर मैं जो भी रेट पे मुझे उसको सेल करने के लिए रखना है मैं उसका सेल ऑर्डर प्लेस कर पाऊंगा. अभी उसमें दूसरा ऑप्शन है ऐड मार्जिन. ऐड मार्जिन का क्या फंक्शनैलिटी है, उसका हमको क्यों जरूरत पड़ता है, वो मैं आपको एक बार अभी ओवरव्यू दे देता हूं. करंटली जब मैंने कोई शेयर बाय करता हूं तो मैंने सपोज 25,000 रुपए देके 1 लाख रुपए का शेयर बाय किया है. तो वो 25,000 रुपए देके मैंने जो 1 लाख का शेयर बाय किया है तो उसमें जब मैं ओपन पोजीशन में जाऊंगा तो मुझे यहां पे एक ट्रिगर प्राइस करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्क्रीन में. ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है, तो जो पोजीशन आपने लिया है वो पोजीशन में आपने जो 25,000 रुपए सपोज दिए हैं वो पोजीशन को आप ये ट्रिगर प्राइस तक आने तक होल्ड कर पाएंगे. ठीक है. So here, तो to add, because it is a leverage position, so you are not paying your full amount. You are paying a part of the amount to take the position. So hence there is a mark-to-market process which happens. So this is very important because ऐसा नहीं हो कि आपने position लिया और फिर वो position auto square off हो गई and you are not aware of it. So for a better clarity, we are having this discussion. We are elaborating this to you that we have a trigger price also on the website which we keep reflecting. So if at any point of time, जैसे आपने ये buy किया है, the way Darshan just explained, so you bought this share, let's say at 2,600 and the current price is 1,993. So till the time the current price goes 1,671, goes below that, you will be able to hold this position. अगर ये इसके आसपास आता है तो फिर आपको कुछ मार्जिन ऐड करना पड़ेगा टू फर्दर रिड्यूस द ट्रिगर प्राइस. So this is shown on the open position MTF page once you take a position. So that is one. And second thing which Darshan, I think you can explain is it is important to also create a pledge. When you take a position, the requirement is such that आप अगर position लेते हो और आपको position अगर होल्ड करना है, 2 दिन के बियॉन्ड होल्ड करना है, तो इट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए प्लेज. इट इज द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कि ऑल द पोजीशंस व्हिच इज क्रिएटेड इन मार्जिन फंडिंग हैज टू बी प्लेज्ड. और वो प्लेज का कंफर्मेशन क्लाइंट ही दे सकता है बिकॉज क्लाइंट ओटीपी के थ्रू उस प्लेज को कंफर्म करेगा. सो वी विल initiate the pledge request on behalf of client. So client, after taking the position, he can go to the NSDL website. NSDL website पे जाने का लिंक यहाँ देखिए ऊपर दिया हुआ है, प्लेज कंफर्मेशन लिंक. क्लिक हियर फॉर NSDL, क्लिक हियर फॉर CDSL. So client can click on these link. So if you take a position today, let's say you take a position today, then by today evening 5 o'clock, 6 o'clock, you can visit to this link and confirm the pledge. And this confirmation
of pledge is required to be done before 9 a.m. on T+2 day. So that means if today is Friday, अगर आपने शुक्रवार को पोजीशन लिया है तो आपको मंगलवार को यानी ट्यूसडे सुबह 9 बजे से पहले ये प्लेज कंफर्म करना है. अगर आपने प्लेज कंफर्म नहीं किया तो यहाँ पर देखिए ओपन पोजीशन पेज पे यहाँ पे प्लेज क्रिएटेड का एक फ्लैग आ रहा है. तो यहाँ पर प्लेज क्रिएटेड मतलब प्लेज क्रिएट हो चुका है. और अगर प्लेज क्रिएट नहीं होगा ना तो फिर आपको यहाँ पे रेड कलर में आएगा, दैट पोजीशन विल रिफ्लेक्ट इन ए लाइट रेड कलर. So that is the indication that you need to create the pledge so that you can continue to hold the position beyond T+2 day. So that was all. And on MTF front, I think we can, Darshan, speak more about the features of the product. Broadly, we have covered that how to do a transaction, how to track the position. The way Darshan just explained that the day you take a position, it will reflect you on the margin position. और अगले दिन से आपको वो पोजीशन MTF पोजीशन में दिखने लगेगी. एंड इट इज रिक्वायर्ड टू डू ए प्लेज विद इन 2 days. सो एनीवन कैन प्लेस ए MTF ऑर्डर. देयर इज नो सेपरेट एक्टिवेशन टू बी डन. हर एक क्लाइंट के लिए मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग ऑलरेडी एक्टिव है. कोई अलग से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, कोई अलग से आपको फिजिकल साइनिंग की जरूरत नहीं है. एनीवन कैन कम टू द वेबसाइट एंड दे कैन डू ए प्लेसमेंट ऑफ MTF ट्रेड. It is available both on our website as well as our mobile app. So for the benefit of all, I will urge everyone to install ICICI Direct Markets app. So Markets app is a new app which is meant for doing transactions in equity product. तो वहाँ आप MTF buy कर सकते हैं वहाँ से भी. It is very simple 2-step process as Darshan has mentioned. So that was all on MTF side, and the key features which was explained in this call, we will like to again reiterate the same. One is you can hold the position till 365th day. Second is the interest rate is very, very low, like 7.9% as low as interest is very competitive in the market. Those who do MTF elsewhere or who would have done MTF earlier, they would understand that this rate of interest is very competitive. And आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट लगता है तो डेली इंटरेस्ट इज डिवाइडेड बाय 365. अगर 7.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इफ यू डिवाइड बाय 365 तो इट कम्स टू 0.022%. यानी ₹1,00,000 का फंडिंग पे 22 रुपए का रोज का ब्याज है. एंड दिस इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ बाइंग सेटलमेंट डे. So I will just like to take 2 minutes to clarify how exactly interest is charged, because customers may come up with queries and we all need to understand this very clearly कि interest किस तरीके से charge होता है. So for example, today is Monday. Assume that today is Monday. So अगर आप कुछ Monday को खरीद रहे हैं पोजीशन MTF में और आपने वो पोजीशन Friday को स्क्वायर ऑफ किया तो मंडे का जो बाइंग सेटलमेंट डे है दैट इज T+2 विच इज वेडनेसडे. तो एज आई सेड इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ बाइंग सेटलमेंट डे. सो दैट मीन्स इंटरेस्ट का मीटर आपका चालू होगा गुरुवार से फ्रॉम थर्सडे विच इज द नेक्स्ट डे ऑफ बाइंग सेटलमेंट डे. सो इफ यू आर बाइंग एनीथिंग ऑन मंडे, T+2 बाइंग सेटलमेंट डे इज वेडनेसडे. सो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे. और इन दिस केस यू आर क्लोजिंग द पोजीशन ऑन फ्राइडे. आपने 5वें दिन पोजीशन क्लोज कर दिया. तो पोजीशन क्लोज अगर आप फ्राइडे को कर रहे हो तो उसका सेलिंग सेटलमेंट इज ट्यूसडे, बिकॉज सैटरडे संडे इज नॉट कंसिडर्ड व्हेन यू डू कैलकुलेट द सेटलमेंट डे. सो ट्यूसडे इज द सेलिंग सेटलमेंट डे. सो इन दिस केस इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो आपका चार्ज चालू होगा फ्रॉम थर्सडे, Friday, Saturday, Sunday, Monday and Tuesday. So Tuesday being the settlement day will be the last day for charging the interest. तो कस्टमर का यहाँ पे क्या क्वेरी आ सकता है? कस्टमर में आस्क कि मैंने तो फ्राइडे को पोजीशन क्लोज कर दिया तो उसके बाद भी मुझे सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे का इंटरेस्ट क्यों लगा? इट इज़ बिकॉज आप फ्राइडे को पोजीशन क्लोज करते हो तो उसका पैसा एक्सचेंज से मंगलवार को आता है.
तो इसीलिए आपकी फंडिंग जो है ना वो मंगलवार तक की फंडिंग थी, बिकॉज द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज डन बेसिस द सेटलमेंट ऑफ फंड्स विच इज डन बाय एक्सचेंज. So I hope I was able to clarify this to all of you with respect to the charges. And Darshan, if you can please share the screen of our web page, or else Yes. I will just take the control over the screen and I will share it. Is my screen visible to all of you now? Sir, not yet visible. Now it's visible, sir. Yeah. So this is the page which is available to all of you. Any one of you can access this page. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया, इसी पेज पे नीचे फीचर्स भी लिखे हुए हैं जो हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको. So this is the most important element which I wanted to show, that what is the interest charged. तो अगर आप प्रीपेड प्लान लेते हो तो प्रीपेड प्लान में आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो इस हिसाब से लगता है. सो वी हैव डिफरेंट प्लान्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2500 रुपीज टिल 1 लाख रुपीज का प्रीपेड, where the brokerage rate is also mentioned. Brokerage rate can be as low as 0.07% in delivery product and interest rate is 7.9% here. Similarly, if you go to prime plans, अगर किसी ने prime plan लिया हुआ है तो prime plan के साथ आपका interest rate in the base plan जो 299 रुपीज का प्लान है which is annual plan, there the interest rate is 14.9%. And with the best plan which we have is the lifetime plan of 4999, जहाँ पे क्लाइंट को एक बार के लिए 5,000 रुपये देने हैं और लाइफ टाइम के लिए उसका जो ब्रोकरेज रेट है वो 0.10% हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, और उसका MTF का इंटरेस्ट रेट 7.9% हो जाएगा. सो दीज आर द रेट चार्ट्स कि इंटरेस्ट कौन से प्लान पे कितना लगता है. बाय डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट and the brokerage is 0.55% is the brokerage and the rate of interest is 18%, 18%. So 18% comes to 0.050%. So that is the daily interest which is charged if the customer has not opted for any of the prime or prepaid plans. So I will also suggest every one of you that if you can please spare some time to go through this page. This page is available on our website. आप वेबसाइट पे जाइए, go to equity, under equity you can go to products. तो products में MTF का पेज है ये. यहाँ पर we have a detailed FAQs कि क्या क्या, जैसे हमने अभी इस कॉल पे जो भी कवर किया है, everything is mentioned in this FAQ. So you can use this FAQ as a reference at any point of time. So broadly we have covered everything. So you can refer this as a reference, and that was all from margin funding product. And if you have any questions on MTF, we will spare 5 minutes to take questions. You can please put that on chat box because we also have to cover share such margin in today's call. So in case you have any questions, you can please put that on chat box. So Yes, sir, yeah, please. So, sir, there's a question that which type of corporate actions will not impact open MTF position and what we should communicate to a customer who is new to MTF product. So here what happens is, if the customer is getting dividend, then he will be eligible for the dividend. उसको dividend मिलेगा. अगर कुछ आपको voting वाला e-voting है तो e-voting also you can do. The only thing which will impact the customer is bonus and stock split. So if there is a bonus or if there is a stock split which is happening, so in both these cases the positions are closed before the corporate action before the X date. So ICICI Direct notifies that to all the clients by way of sending them notification, by way of updating the buy messages. So this is being done to manage the risk of the client, risk of the position. So I hope that answers the question. And we will quickly move to share such margin product, and I will request Darshan if you can please take us through that product. Yes, sir.
So Darshan, you'll be starting with the session on the share as margin. So in the meanwhile, I will just brief you about the product shares as margin. So uh, uh, I hope I am audible to you. Yes, sir, you're audible. Yeah. So the thing is, this product is such where you can use your existing demat holding, and using that holding you can create limit, और वो लिमिट जो आप क्रिएट करेंगे, you can allocate that limit in equity or FNO section, and this you can use to do transactions in equity and FNO. इक्विटी में आप MTF में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. सो अगर आप देखें, the beauty of this product is if you don't have any amount, any cash in your account, still you will be able to buy shares in MTF. क्योंकि आपके पास अगर डीमैट में होल्डिंग है, आपके पास अगर 10 लाख रुपए का होल्डिंग है, तो 10 लाख का होल्डिंग के सामने आप 8.5 लाख का लिमिट जनरेट कर सकते हैं, और वो 8.5 लाख के लिमिट के साथ यू कैन बाय अप टू 4 टाइम्स द स्टॉक्स विच यू वांट टू बाय, विच इज अवेलेबल इन एमटीएफ. यानी 10 लाख का स्टॉक होल्डिंग अगर आपके पास है, तो आप लगभग 34 lakhs का additional shares you can buy with your 10 lakhs का holding. So this is what MTF helps, and this is the feature which MTF provides to all the client. And like we will strongly recommend that since it is a leverage kind of product, there is a risk associated with the product. अगर मार्केट बढ़ता है तो प्रॉफिट जितने तेजी से होता है, वैसे ही मार्केट गिरने पे नुकसान भी उतने ही तेजी से होता है इस प्रोडक्ट में. So those who understand leverage should do it. Ideally, this product is for those who don't have sufficient cash at the time of buying shares. अगर उनको लग रहा है कि they can arrange funds in 1 month time, अगर कोई सैलरीड क्लाइंट है तो उसको सैलरी 1 तारीख को आने वाला है या 30 तारीख को आने वाला है, तो तब तक के लिए if he see that there is a opportunity, they can purchase the share, and once the money is there, they can convert the position in delivery. So this is the beauty of product MTF combined with SAM. SAM means shares as margin, जहां पर आप बिना कोई पैसा लाए भी you can invest in MTF. Darshan, in the meanwhile, am I audible to you? Like, because your voice was not coming between. Sir, you're audible, sir, but I think Darshan is not audible. Okay, so you can check offline with Darshan. Yeah, and yeah, his sir. I'll do availability. I that. will just share my screen. Yeah, yeah, sir. So the way I have shown you the shares as this MTF ka page, we have a similar page for shares as margin. You go to equity, under equity you go to products. So products पे क्लिक करेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कैशलेस इन्वेस्टिंग ऑप्शंस में शेयर एज मार्जिन का ऑप्शन आएगा. You click on shares as margin. So here you will get to know each and everything about shares as margin. I will just brief you about the basic benefit which you get out of it, that you can generate the limit, and the limit can be used to trade in MTF. You can do intraday margin transaction, and you can do transaction in future and options. So just to tell you that आप ये लिमिट कहाँ यूज नहीं कर सकते, अगर मुझे वो बताना हो, तो ये लिमिट आप अभी आज के दिन करेंसी में, कमोडिटी में यूज नहीं कर सकते. ये लिमिट आप सिर्फ MTF में यूज कर सकते हैं. इंट्राडे अगर आपको मार्जिन करना है तो मार्जिन में कर सकते हैं. मार्जिन प्लस में दिस इज नॉट अवेलेबल. इट इज अवेलेबल ओनली इन मार्जिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यू कैन यूज इट इन फ्यूचर एंड ऑप्शन. आई थिंक मार्जिन प्लस में भी इट इज नाउ अवेलेबल. सो यू कैन डू इंट्राडे ट्रांजैक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप कर सकते हैं, एंड इन MTF यू कैन डू दिस. एंड द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दैट if you do transactions in derivatives, so derivatives में अगर आप मान लीजिए options बेचना है आपको, या फिर आपको futures buy sell करना है, तो in derivative it requires margin to do transaction. So if you use shares as margin as limit to make use of that limit as margin, तो उस पर आपको कोई interest charge नहीं होता. So this only catch is that we have a separate brokerage plan called ICICI Direct Neo Brokerage Plan. So Neo Brokerage Plan में we don't charge for that brokerage in future transaction. Futures में अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे brokerage is 0. And if you do transaction in options, so there the brokerage is rupees 20 per order.
मार्केट बढ़ता So है तो if profit anyone is जिससे mapped तेजी से to होता है, ICICI जैसे Direct ही Neo market plan, गिरने पे नुकसान भी only होती है, then तो the interest is जो charged डेटा for usage of limit in credit FNO. limit requires Or margin else to do transaction. usage of limit in FNO is absolutely free of cost. There is no interest which we levy. And if you use this limit in margin funding, तो मार्जिन फंडिंग पे भी आपको इस लिमिट पे इंटरेस्ट लगता है. सो लेट्स से अगर आप 1 लाख रुपीस का शेयर्स खरीद रहे हैं, सो जस्ट टू गिव यू दिस एग्जांपल by showing margin funding, so let's say that you are buying Reliance worth 2.6 lakhs, और यहाँ पर आपने ये जो 68,000 का लिमिट दिया है, assume that it is not cash, it is your share surge margin limit. So in that case आप जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपको ये 68,000 पे भी लगेगा और ये 1,93,000 पे भी लगेगा. ये दोनों अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगेगा बिकॉज इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एनी नॉन कैश component which you take in margin funding. So I hope I was able to clarify you on charges. Like share surge margin, as I said, if you trade in MTF, then interest will be charged on your share surge margin limit also because it is not a cash component and we have to pay to the exchange on T+2. Coming to FNO, in FNO there is no interest which is charged on the usage of share surge margin limit. The interest will only be charged in FNO if the customer is mapped to ICICI Direct Neo plan. So that was all, and I think we can show you a small demo of how to pledge your shares, how to create the limit, and then how can you do the transaction. So to this, I will again check if Darshan, I think he has Yes. some issues with network. So Darshan, if you can please take over to the call and show a small Yes. demo of how to place the shares, how Yes, to yes. allocate the limit. If you can just give us, like, we are left with only 15 minutes. So I will suggest that if you can just take 5 more minutes to show a small demo of share surge margin, and then last 10 minutes we can have a Q&A. Okay. My screen is visible, team? Yes, it's visible, Darshan. Okay. जब भी whenever to pledge his shares or wants to create a limit from his share existing holding, then he need to click on an equity section. Under an equity section, there is an option of shares as margin. Whenever he clicks on a shares as margin, the first option he will get is the pledge and create limit. What is pledge and create limit? The when customer wants to create a limit from his existing stocks, then entire holding of customers will be reflected over here, the free holding. There are 5 scripts available in my holding. If I want to pledge these shares, for example, the first script, 10 shares I have, I want to pledge 5 shares. Second one, I want to pledge over 100 entirely. I can feel which shares I want to pledge. I can feel what quantity I want to pledge. अगर 5 के 15 पूरी कर दें तो मैं यहाँ से चेक का तो भी मैं ऑटोकेट मतलब जो भी वैल्यू हो रहा है उसका 24% कम मुझे यहाँ पे लिमिट के तौर पे मिल रहा है. करंट वैल्यू है इसका 11,815, मुझे यहाँ पे उसका 24% काट के 8,980 रुपये मिल रहा है. ठीक है, मैं ये शेयर्स को मुझे इसको प्लेज करके मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मुझे उसको इक्विटी में अलोकेट करना है ये लिमिट को, या ये लिमिट को मुझे एफ&ओ में सिलेक्ट करना है. मैं जहां पे भी उसको प्लेज करना चाहूंगा मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके कंफर्म करूंगा तो मेरा प्लेज रिक्वेस्ट चला जाएगा. ये मेरा प्लेज रिक्वेस्ट चला गया है. इसके बाद मुझे NSDL या CDSL जो भी आपकी डिपोजिटरी है वहां से आपको एक लिंक मिलेगा. वो लिंक के अंदर जाके हमको पैन कार्ड डाल के वहां पे जो शेयर्स हमने यहाँ से जो प्ले हैं वही शेयर्स मुझे वहां पे दिखाई देंगे. मुझे उसको सिलेक्ट करके OTP डाल के उसको कंफर्म करना है. यानी कि मैं मेरा कंफर्मेशन क्लाइंट दे रहा है कि ये शेयर्स आई एम ओके टू प्लेज. जब भी वो शेयर्स क्लाइंट उसका लिंक प्रोसेस करके उसको प्लेज कर देगा, उसके बाद वो शेयर्स उसको अलोकेट लिमिट्स के अंदर यहाँ पे इक्विटी के अंदर वो लिमिट यहाँ पे उसको ऐड होके मिल जाएगी. अगर उसने इक्विटी सिलेक्ट किया है तो इक्विटी में मिलेगा, अगर उसने एफ&ओ सिलेक्ट किया है तो उसको वो लिमिट एफ&ओ में दिखाई देगी.
ठीक है। कस्टमर को अगर वो लिमिट को स्विच करना है, इक्विटी से उसको एफएनओ में लेके जाना है या एफएनओ से इक्विटी में लेके जाना है, तो वो यहाँ से उसको स्विच भी कर सकता है। अभी कस्टमर का क्वेश्चन है कि मुझे इसको विड्रॉ करना है, ये शेयर्स जो मैंने प्लेज किए थे उसको अगर मुझे रिलीज करके वापस मुझे डीमेट में लेके जाना है तो मैं कहाँ जाऊं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे शेयर एज मार्जिन में अपना ऑप्शन है प्लेज सिक्योरिटीज। प्लेज सिक्योरिटीज पे आप क्लिक करोगे तो जो भी शेयर्स उन्होंने प्लेज किए हैं वहां पे ये एक लिस्ट आ जाएगा, और वो लिस्ट के अंदर उनको ऑप्शन दिखाई देगा रिड्यूस। तो रिड्यूस पे अगर वो क्लिक करेंगे और क्वांटिटी फिल करके सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ये शेयर्स उनके डीमेट में आ जाएंगे। और जो भी शेयर्स हम प्लेज कर रहे हैं या उसको रिलीज कर रहे हैं, या जो भी शेयर्स हम एमटीएफ में बाय करके उसको प्लेज करके होल्ड कर रहे हैं, हर एक स्क्रिप्ट का पर आईएसआईएन मुझे 20 रुपीज प्लस जीएसटी मुझे उसका प्लेज चार्ज लगता है। जैसे अभी आपने देखा मैंने 3 स्क्रिप्ट को प्लेज करने का रिक्वेस्ट इनिशिएट किया है, तो मुझे तीनों स्क्रिप्ट का मिलके 20 रुपीज प्लस जीएसटी मतलब 23.60 होगा पर स्क्रिप्ट, उतना मुझे चार्ज लगेगा। अगर मैं कोई नया शेयर एमटीएफ में अगर बाय भी करता हूं और जब मैं उसको बाय करके उसका प्लेज इनिशिएट करता हूं तो उसका भी मुझे 20 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। ठीक है। कस्टमर को चार्जेस जो है प्लेज के चार्जेस है, these charges are charged by the depository. So this is something which we don't collect because it is the depository charges. So bare minimum जो depository charges होते हैं वही हम collect कर रहे हैं यहाँ पर, so that we can recover that pledge cost. So it is depending on the number of pledge request which is going. अगर आप 3 stocks pledge कर रहे हैं तो 3 अलग अलग stock pledge कर रहे हैं अगर, so there are 3 requests which are going. So per request 20 रुपीज प्लस जीएसटी। सो आप चाहो तो 1000 शेयर एक बार में प्लेज करिए या आप 10 शेयर प्लेज करिए, आपको पर प्लेज 20 रुपए ही लगेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यू प्लेज। दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ चार्जेस। या दर्शन, और यही चार्जेस अगर आपको व्यू भी करना है तो आप सेटिंग्स में जाओगे, वहां पे एक व्यू डिपॉजिटरी और डीमेट चार्ज है, उसके अंदर आपको जो भी एनएसडीएल सीडीएसएल के डिपॉजिटरी चार्जेस है वो आपको वहां पे हिस्टोरिकल डेटा के साथ मिल जाएंगे। तो अगर आप रिकंसाइल भी करना क्लाइंट चाहेगा तो वो यहाँ से रिकंसाइल करके चेक कर पाएगा। ये है अपना मार्जिन का बेसिक फीचर। अब हम इसको सेशन को कोई डाउट्स है तो आप एक बार बता दीजिए तो अपने इसको क्विकली रन आउट करेंगे। so in the meanwhile just wanted to add this share surge margin facility is available both on our mobile app and website. किसी को अगर करना है तो वो मोबाइल डिवाइस से भी शेयर्स प्लेज कर सकते हैं। इट कैन बी डन बाय यूजिंग मोबाइल डिवाइस ऑल्सो। सो वी हैव द शेयर सर्च मार्जिन टाइल ऑन आवर LBS ऐप जो हमारा मोबाइल ऐप है, या कोई अगर मार्केट्स ऐप यूज़ कर रहा है तो इन मार्केट्स ऐप एट द बॉटम एक्सट्रीम राइट वी हैव ए ऑप्शन मोर। The user can click on more and under that you will find share surge margin through which you can initiate the pledge of shares, you can create the limit and you can use the limit. The timeline I want to mention here कि अगर आप शेयर सर्च मार्जिन के थ्रू कोई लिमिट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, बिकॉज आप प्लेज इनिशिएट करते हैं, फिर वो प्लेज रिक्वेस्ट मैनुअली पंच होता है एक्सचेंज को, डिपॉजिटरी को, एंड फ्रॉम देयर द कस्टमर विल देन do the confirmation of pledge by putting in OTP. So it is always advisable that if you want to use the share surge margin facility, आप पहले से प्लेज करके रखिए अपने सिस्टम पे, so that you have the limit with you. जब आपको ज़रूरत हो आप उसको यूज़ कर पाएंगे। लिमिट जनरेट करने का सिर्फ 20 रुपीज़ का चार्ज है पर प्लेज, अदरवाइज देर इज़ नो इंटरेस्ट विच इज़ चार्ज ऑन द लिमिट विच इज़ आइडल। अगर वो लिमिट आपने बस ऐसे ही जनरेट करके रखा हुआ है ना तो उस पर कोई इंटरेस्ट या ब्याज नहीं लगता। जब आप उसे यूज़ करेंगे तभी उस पर इंटरेस्ट लगेगा इन एमटीएफ, और एफएनओ में तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं है। एफएनओ में इट इज़ फ्री ऑफ इंटरेस्ट इफ़ यू यूज़ द लिमिट, except for customers who are mapped to Neo brokerage plan. In share surge margin, we have a defined list of stocks. So if you can please share Darshan the stock list which is shown at the top. तो यहाँ स्टॉक लिस्ट से आपको दिख जाएगा। शेयर सर्च मार्जिन में देखिए द 5वां ऑप्शन, द 5th ऑप्शन इज स्टॉक लिस्ट।
हाँ, so here you will get to know कि which all stocks are available which you can pledge. ये जो हेयर कट लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड, सो 27% इज द हेयर कट. दैट मीन्स 1 लाख रुपए पे आपको 73,000 रुपीज का लिमिट मिलेगा. 27% का हेयर कट है, तो इतना काटने के बाद जो बचता है दैट लिमिट यू विल गेट. एंड इफ समबडी हैज सम डीमैट होल्डिंग, तो इफ यू गो टू प्लेज एंड क्रिएट लिमिट, दर्शन इफ यू कैन प्लीज क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, तो यहाँ पे आपका जो डीमैट होल्डिंग है दैट होल्डिंग विल बाय डिफॉल्ट अपीयर हियर. आपको अलग से स्टॉक लिस्ट में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है. आपको यही दिख जाएगा कि आपके कौन से होल्डिंग में कितना हेयर कट है, कितना लिमिट मिलेगा. तो अगर मैं ये पूरी होल्डिंग प्लेज करता हूँ तो मुझे 30,000 का लिमिट मिलता है. दैट यू कैन सी बिफोर यू डू द प्लेज. आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कितना मिलेगा. दिस प्लेज इज नाउ अवेलेबल फॉर लिस्टेड शेयर्स. शेयर सर्च मार्जिन फैसिलिटी इज करेंटली नॉट अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एनसीडीज. वहाँ पर शेयर सर्च मार्जिन फैसिलिटी इज नॉट देयर. So it is only available for listed shares. There are more than 1,000 shares where we provide this facility. If you want to see the whole list, you can go to stock list. अगर आप अपने डीमैट से चेक करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर शेयर सर्च मार्जिन फैसिलिटी है, you can log in and go to pledge and create limit. Here you will see for all the stocks which you hold, what is the haircut and how much limit you will be able to generate. So I think that was all from our side. Darshan, if you feel that anything which is yet to be covered, you can please do that, or else we can then start the Q&A. No, we have I covered think everything, so sir. I think we should start with Q&A. So that will also resolve other partners' queries as well. Yeah. So we'll first take up the queries. Okay, so sorry, we'll first take up the queries of those participants who've raised their hands. So I think Dr. Finance has raised their hand. So sir, you can unmute yourself and please ask your question. Dr. Finance, you there? Plazi, I think you will have to unmute, sir. So I think we've unmuted him. Okay, I think he's left. So Sandeep Jaiswal, you can ask your question. We have unmuted you. I mean, you can unmute yourself now. Okay, Dinesh Tiwari, you Hello, can hello. please ask. Yeah, sorry. Hello. Yeah, please go ahead. Please go ahead. मैडम क्वेश्चन मेरा काफी सारा है. क्योंकि पहले तो शेयर एज मार्जिन की रिगार्डिंग ये है. शेयर एज मार्जिन सपोज मैंने 1 लाख का शेयर लिया, राइट. मैंने कैश लिया, उसको फिर मैंने शेयर एज मार्जिन डीपी बनाने के बाद मैंने शेयर एज मार्जिन यूज कर लिया. सपोज उसमें मेरे को 80,000 का मुझे लिमिट मिला. 80,000 का 3 टाइम्स मैंने कोई शेयर एमटी में परचेस कर लिया, राइट. हाँ जी. Yes. अभी मुझे जो शेयर मैंने प्लेज किया था, जो मेरा कैश वाला पैसा, उसको मुझे सेल आउट करना है. क्या मैं सेल आउट कर सकता हूँ? हाँ सर, आप Yes. उसे कर पाएंगे. आप ये जो ऊपर आपको लिंक दिख रहा है ना, प्लेज एंड क्रिएट लिमिट, तो यहाँ तीसरा लिंक देखिए लिखा हुआ है प्लेज सिक्योरिटीज. तो आपके जो भी शेयर्स प्लेज है ना वो यहाँ दिखेंगे. फिलहाल इस अकाउंट में एक भी शेयर्स प्लेज नहीं है, तो इसीलिए यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है. तो अगर आपने प्लेज किया हुआ है तो आपको वो यहाँ दिखेगा, और हर एक शेयर के सामने आपको एक सेल का लिंक आएगा. तो यहाँ पर सर एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि ये जो सेल होता है ना, ये स्पॉट सेल होता है. स्पॉट सेल यानी इसका पैसा आपको सेम डे मिलता है. ठीक है. तो उस पे जो ब्रोकरेज है दैट इज वेरी हाई. दैट ब्रोकरेज इज 1%. तो हेंस वी विल always suggest that in case you would want to sell any of these shares, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं. वहाँ पे चार्जेस जो है फिलहाल 1% लगेगा. अगर आपको नहीं, तो अगर वो बचाना है तो फिर आप वहाँ से रिलीज कर सकते हैं शेयर. यू कैन रिलीज द शेयर, रिड्यूस द प्लेज. आप फिर अगले दिन उसे बेच सकते हैं वहाँ से. तो दोनों ऑप्शन है सर आपके पास. स्पॉट सेल करेंगे तो 1% का इंटरेस्ट वो लग जाएगा, कमीशन लग जाएगा सर. हाँ जी सर. और उसको फिर अगर मैं उसको अनप्लेस करना तो फिर आज नहीं बेचूंगा, कल बेचूंगा. ऐसा ही है सर. ये तो बहुत दिक्कत वाली चीज है ना सर. सर वैसे मैं कोई स्टॉक को सपोज प्लेस कर देता हूँ आज, तो फिर उसको मेरे को बेचना नहीं देता है. शेयर मार्जिन कर दे तो फिर वो आज बेचना नहीं देता, तो कल बेचने देता है. नहीं सर, आपको सर आज बेचने देगा, बट वो आज बेचने पे फिर उस पे जो ब्रोकरेज है वो थोड़ा सा हाई लग जाता है सर उस पे.
तो उस वजह से ये चीज है सर। तो उसमें आप ये जो शॉर्ट शेयर्स सेल करो सर, ये दिस इज कस्टमर को कैसे कन्विंस करेंगे बताइए ना। सपोज 20 लाख का कोई आदमी प्लेस किया कोई स्टॉक को, ठीक है, जी 20 लाख के स्टॉक को प्लेस करके कोई एक ही स्क्रिप्ट है उसको आदमी प्लेस करके उसके अगेंस्ट में मार्जिन लेकर काम करे। अब उसको बेचना रहेगा तो 20 लाख का 1% बहुत ज्यादा लग जाएगा। सर, वहाँ पे अनप्लेज करके क्लाइंट कर सकते हैं, अगले दिन होगा वो। तो मेरे हाँ को वही जितना तो बोल रहा हूँ, ये क्लाइंट को कौन कन्विंस करेगा इसके सर, ये लिए? फीडबैक जो है ना, ये फीडबैक हमें पहले भी मिला है, तो वी आर वर्किंग ऑन दिस फीडबैक। वी आर सीइंग दैट हाउ कैन वी डू दिस, मतलब इंस्टेड ऑफ सेम डे पे आउट इफ वी कैन डू समथिंग, तो दिस इज समथिंग व्हिच वी आर इवैल्यूएटिंग। सो वी ये एग्री तो दैट दिस कुड बी वन ऑफ द पेन पॉइंट। काफी दिक्कत है ना इसमें तो। हाँ जी सर, मैं समझ सकता हूँ सर आपकी बात, बट अभी जो है सर, जो है मैंने आपको सर बताया अभी, बट वी टेक दिस एज ए फीडबैक सर। So I think that answers the question. We can take the next question. Hello. Hello. Rahul Navini. Hello, I have one doubt. Yes, sir. Yeah, please ask. If I have the pledge securities but I don't have the cash, so what you will do? You will square off my position, or but I have the limit in my pledge securities. So this is with regards to which product? MTF, which position? MTF. So Let's say, MTF, for example, I have a 10 lakh rupees of shares. I have pledged that, and I have taken an MTF against that shares. And हाँ सर, now I have the open position, but I don't have the cash. What you will do about my MTF position? I will tell you sir. Here what happens is, जैसे मान लीजिए 10 लाख का आपने लिमिट जनरेट किया शेयर सर्च मार्जिन में, ठीक है, और आपके पास अकाउंट में पैसे बिल्कुल नहीं है फिलहाल, और आपने वो 10 लाख के सामने Okay. आपने मान लीजिए 30 लाख का पोजीशन ले लिया, ठीक है। Correct. अब वो 30 लाख के पोजीशन में आपको 3-4 लाख का नुकसान हो गया, बराबर है. क्योंकि पोजीशन आपने लिया है, तो बेस्ड ऑन द प्राइस चेंज नुकसान प्रॉफिट होगा आपको। तो जब तक आप वो नुकसान बुक नहीं करते तब तक तब तक कोई इशू नहीं है। मतलब आपको अगर नुकसान हो रहा है वो अनरियलाइज लॉस है सर। बराबर है. आप वो लॉस बुक कर लेते हो, अगर आप वो पोजीशन क्लोज करके आपने 3 लाख का लॉस बुक कर लिया, तब आपको 3 लाख रुपए नगद लाना होगा। अगर आप 3 लाख का नगद अरेंज नहीं कर सकते हो, तो दूसरे दिन यानी बेचने के दूसरे दिन हम 3 लाख रुपए तक का शेयर आपका बेच के वो पैसा रिकवर कर लेंगे। श्योर, पर मुझे कैसा कि आपका इंटरेस्ट का साइकिल कि आप रोज इंटरेस्ट काटते हो, बराबर. हाँ जी सर। तो मुझे कैश लिमिट में नेगेटिव दिखा रहा है, पर मेरा सिक्योरिटीज लिमिट 10 लाख का दिखा रहा है, तो मुझे टोटल में ऐसा दिखता है कि मेरा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है लिमिट. तो उसमें कोई सही प्रॉब्लम बात नहीं है अगर मैं कैश लाऊं भी नहीं तो. सर, आपका क्या होगा, जब भी आप पोजीशन क्लोज करोगे ना, तो पोजीशन क्लोज करते वक्त अगर आपने वो कैश लाया नहीं है ना, तो वो नेगेटिव लिमिट रिकवर करने के लिए भी हम शेयर्स बेचेंगे। तो जो भी आपका नेगेटिव लिमिट है आफ्टर क्लोजिंग द पोजीशन, वो उतना आपको पोजीशन क्लोज कर नेगेटिव है ना, अगर मान लीजिए नेगेटिव है पोजीशन क्लोज करने के बाद, तब आपको वो करना होगा। अरे कोई दूसरा यूज करो, कुछ समझ आवाज नहीं आ रहा आपका. और बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रहे हैं आपकी तरफ से। So, Plazi, if you can mute all and then we can again. Yeah, okay. हेलो हेलो. हाँ सर, बताइए सर। हाँ बोलिए, आप बोल रहे तो. सर, मैं वही बोल रहा था कि जो भी आपका नेगेटिव लिमिट है आफ्टर क्लोजिंग द पोजीशन, इफ यू बुक एनी लॉस और इफ देयर इज एनी रिकवरेबल, so to that extent you will have to bring the cash. If you have a profit and that profit is sufficient to take care of the negative limit, then you don't have to bring any cash. So your MTF closer of position will only happen if you have any outstanding after closing the position. So that was all. I think that answers the question. So Plazi, we can take the next question. Hello. हेलो. I have a question. तो can I take the new position? Yes sir, you can take new position sir. But even if my cash limit is negative, even I can also take the new position, correct? If your cash limit is negative, then you will not be able to take new position because your account will go to square off mode. तो आपको नया पोजीशन लेने के लिए वो नेगेटिव क्लियर करना होगा। हेलो हाँ सर। हेलो. Am I audible? हाँ, yes, please repeat.
तो नया पोजीशन अगर आपको लेना है तो आपके अकाउंट में नेगेटिव लिमिट नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव लिमिट है तो आपका अकाउंट स्क्वायर ऑफ मोड में जाता है। स्क्वायर ऑफ मोड मतलब यू विल नॉट बी एबल टू टेक एनी फ्रेश पोजीशन। And one last question: if I have an MTF position and there is a corporate action, right now I have a Jubilant Food and there is split has been announced, bonus or split announced हुआ है, but in iMessage I have not received any message that what you are going to do for my position. तो वो कब पता चलेगा मुझे? सर वो हम आपको रिकॉर्ड डेट से 3-4 दिन पहले अपडेट कर देते हैं। ओके पर मैंने बाकी ब्रोकर्स को पूछा और सब लोग अपना पोजीशन खड़ा रखते हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, कोटा के, उन लोग पोजीशन खड़ा रखते हैं क्लाइंट्स का, एमटीएफ वाला भी। बोनस आने पे सर, बोनस आने पे कोई खड़ा नहीं रखता सर। बोनस पे भाई स्प्लिट पे नहीं राहुल रखते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में खड़ा रखते हैं पोजीशन भाई। नहीं कहीं भी रखते हैं, सिर्फ आईसीआईसी में आपने बता रहे हो कैसा है मेरे सर साथ। सर स्प्लिट में हमने भी हैंडल किया है, जैसे आईआरसीटीसी में भी स्प्लिट आया था तो हमने भी पोजीशंस होल्ड की थी उस वक्त। तो बोनस में प्रॉब्लम ये होता है कि बोनस में आपके बोनस के शेयर्स कब आएंगे उसका कुछ ऐसा टेंटेटिव टाइमलाइन होता नहीं है सर। 3 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। अभी जुबिलेंट फूड का ऐसा नहीं है राहुल, 1 वीक का उसका मैक्सिमम 15 डेज का ट्रेड होता है। सर उस दौरान क्या होता है ना, अगर आपका शेयर का प्राइस गिर जाता है, मार्जिन होना चाहिए, मार्जिन आपका आता है, बट शेयर तो रिसीवेबल होगा ना। सर एज ऑफ नाउ द वे वी आर फंक्शनिंग नाउ, वी आर शेयरिंग दैट and we will surely take these things as feedback in नहीं मतलब मैं अभी आपने बोला स्प्लिट में खड़ा, तो जुबिलेंट फूड का स्प्लिट है तो स्प्लिट में पोजीशन खड़ा रहेगा कि क्या होगा? हमने सर जब हम आपको बता देंगे उस पे हम क्या करेंगे। मैंने बोला कि एज एन एक्सेप्शन हमने आईआरसीटीसी में पोजीशन खड़ा रखा था, तो वी विल लेट यू नो लाइक हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू हैंडल इट, विल लेट यू नो। अरे पर अभी हमारा तो मेरा तो एमटीएफ का पोजीशन बढ़ा है ना, तभी आपको 10-15 दिन पहले तो बताना पड़ेगा ना हमको कैश अरेंज करना है, क्या करना है। सर अभी आप परसों स्प्लिट आप मुझे एक दिन पहले बोलोगे तो मैं थोड़ी पैसा अरेंज करने बैठूंगा। सर वी हैव नाउ 186 participants in this call. We will separately connect with you and we will share whatever clarity you want, sir. Sure, thank you. Sure, sir. Thank you so much. I'll request everyone to ask only market related questions. So all the technical questions, I think you can route it through all the channel managers. So sir will not be the right person to answer the technical related questions. वन मोर थिंग राहुल, जो अभी आपने ये बताया है ना कि स्पॉट सेल में 1% का कमीशन लग जाता है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी क्रॉस चेक भी कर लिया, मैंने कुछ दिन पहले स्पॉट सेल किया हुआ है, और जो मेरा ब्रोकरेज चार्ज है वही उतना ही चार्ज हुआ है। सर इसमें दो तरीके से सेल होता है। एक तो होता है कि सिस्टम स्क्वायर ऑफ करता है और एक क्लाइंट इनिशिएटेड होता है। क्लाइंट इनिशिएटेड, हाँ, तो सिस्टम स्क्वायर ऑफ में 1% लगता है। क्लाइंट इनिशिएटेड में सर एक बार मे बी वापस से चेक करके वी विल प्रोवाइड यू क्लैरिटी, सिंस यू आर सेइंग दैट आपको क्लाइंट इनिशिएटेड में जो भी करंट हाँ दर्शन बोलिए, उस हिसाब से लगेगा। अगर उनका आई सिक्योर है तो 0.55% लगेगा। So client initiated में दर्शन you are saying that 1% as per the yes 0.55% और the prime plan है तो prime plan का brokerage charge होगा उनको। Okay, so good that we have this clarity. So yes, so the 1% rate will only be charged if the position are closed by ICICI Direct for recovery purpose. Sir. Hello. Okay, so now we'll be taking the questions one by one. Hello. Hello. Disha this side. Yeah, Disha ma'am, please go ahead. As you said in MTF, the additional margin requirement hit when trigger price hit, na? Hello. The understanding is correct. Like the additional margin requirement will hit when the trigger price will hit. So who will decide this trigger price is auto decided or I can put it on my own? So we have defined a minimum margin for each stocks. Okay. And like if you have a position in MTF, on the table itself, you can see, like I will request Darshan to show that open position table, how it looks like once somebody has taken a position. So there in that table, you will be able to see something called minimum margin. So जब आपका current value of shares है, जो आपने position लिया हुआ है, if that value of shares falls below minimum margin, that is the instance where the margin call is triggered. तो for the simplicity purpose हमने उसको convert किया है price पे, कि वो जो event trigger होगा वो किस price पे trigger होगा। तो हमने इसीलिए trigger price दिखाया है वहाँ पर। तो in this snapshot you can see
यहाँ पे मिनिमम मार्जिन दिख रहा है दर्शन, इफ यू कैन प्लीज शो दैट विथ माउस। तो ये मिनिमम मार्जिन जो दिख रहा है ना 3,39,000 का, या और बगल में अवेलेबल मार्जिन दिख रहा है 4,78,000 का। यस तो उसका मतलब ये है कि अगर और आपका नुकसान 1,30,000 जितना नुकसान और हो जाता है, 1,40,000 जितना, ओके तो दैट इज द पॉइंट वेयर योर ट्रिगर प्राइस विल कम। मतलब जब 1671 का रेट आएगा ना, तब ये ऐसा होगा। तो सर इसका कुछ नोटिफिकेशन मिलता है क्लाइंट को? आई हैव अनदर क्वेश्चन टू। हाँ, इसका नोटिफिकेशन जो है, इसका नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। So hence we show this price to the client from the day the position is initiated by the client. So it is the responsibility of customer to monitor this and ensure that they have sufficient margin to safeguard the position. इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब 1671 का भाव आएगा तब सिस्टम नहीं करेगा, सिस्टम पहले चेक करेगा कि उनके लिमिट है या नहीं है। अगर उनके पास सफिशिएंट लिमिट है ब्रिंग द मार्जिन बैक टू इनिशियल लेवल, तो आपका उतना मार्जिन ऑटोमेटिकली सिस्टम पुल कर लेगा फ्रॉम इक्विटी। सो यो पैसा आपका इक्विटी में एलोकेट होना चाहिए, तो उतना पैसा आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम एलोकेट कर देगा इन दिस पोजीशन, एंड दिस ट्रिगर प्राइस विल ऑटोमेटिकली गेट मॉडिफाइड। सो इफ you don't want this position to be closed, you need to have sufficient surplus limit, free limit in your equity to take care of such instances. Okay, I have another question too. Sir, if trigger price doesn't hit, then I can hold that holdings against the MTF for 365 days, na? The understanding is correct. Okay, thank you. Sir, trigger price hit hota hai. Naveen here on the same page. See, the customer should hold the margin in the equity, or he has to add margin whenever there is a decrease. This is one of the query of the most of the partners. Correct. कैसे करना है उसको? ऐड मार्जिन करना है, इक्विटी में है तो 3-4 पोजीशन है, सिस्टम लेगा। देखो दोनों तरीके से किया जा सकता है नवीन जी। अगर आपके पास मार्जिन है, अगर आप देखो इसमें क्या होता है, जब सिस्टम लेता है ना तो सिस्टम पूरा इनिशियल मार्जिन तक लेगा। सो फॉर एग्जांपल अभी इसमें आपका मार्जिन शॉर्टफॉल मान लीजिए, इसमें एडिशनल मार्जिन रिक्वायरमेंट अभी 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे जो भी एडिशनल मार्जिन रिक्वायर्ड दिख रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के बगल में लिखा हुआ है, तो अगर सिस्टम लेगा तो सिस्टम इतना पैसा ऑटोमेटिकली खींचेगा। अगर उससे थोड़ा सा भी लिमिट कम है आपके पास, तो सिस्टम विल स्टार्ट क्लोजिंग द पोजीशन। It has never happened, Rahul. The additional margin system has never taken. Most of the position just kind of not the case. Margin manually customer को करना पड़ता है. If I have multiple positions. अच्छा नवीन जी, are you a employee of ISEC or you are a partner? Rahul, I'm the regional head. This is the query I am getting in my Naveen ji, I think I can show you my account. How system takes position, like how system takes margin, we will let you know. We can show you that. So you need to have that faith on the product and the faith on the process that whatever is happening. पार्टनर्स को एक बार समझा देना प्रोसेस कैसा होता है। तो मैं वही समझा रहा था, एक छोटा सा एग्जांपल। आप ये मत बोलिए कि ऐसा होता ही नहीं है। सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक। कस्टमर बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको वही बताना चाह रहा था अभी। इसमें क्या होता है, अगर आपका 1 लाख रुपए का आपने पोजीशन लिया है, ठीक है, और 1 लाख का पोजीशन लेने के बाद आपका मान लीजिए जब वो पोजीशन का वैल्यू 90,000 रुपये आ गया, मान लीजिए कि 100 रुपये का आपका पोजीशन लिया हुआ था एंड 90 रुपीज इज द ट्रिगर प्राइस। ओके, सो नवीन जी, यू कैन प्लीज इंटरप्ट इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू दिस, बिकॉज आई कैन नॉट हियर एनीवन। सो द मोमेंट द प्राइस रीचेस 90, system will automatically pull 10,000 rupees to bring the margin back to 1 lakh, to bring the position value back to 1 lakh. अगर अकाउंट में 9,900 रुपए भी है ना, then also system will close the position. So when system will pull the margin, it will pull the full amount. So the benefit of add margin manually is that आप अगर 2,000 रुपए भी ऐड करोगे ना, तो आपका ट्रिगर प्राइस 90 रुपीज से 88 रुपीज हो जाएगा। अगर आपने 3,000 ऐड किया तो आपका 90 रुपीज से 87 रुपीज हो जाएगा ट्रिगर प्राइस। सो दैट इज हाउ यू कैन मैनुअली मैनेज योर ट्रिगर प्राइस बाय एडिंग मैनुअल लिमिट्स, मैनुअल मार्जिन। बट इफ यू लीव इट टू सिस्टम, system will add margin to top up the margin till the initial level. So that is the difference. I hope that answers the question. Hello? Plasingham, is that off? Yeah. Hello, sir.
Yeah. Yes, sir. Please ask your Yeah. question. सर अगर ट्रिगर प्राइस हिट होता है और मान लो कि किसी ने वो ऐड नहीं किया फंड या भी इनसफिशिएंट फंड है तो ये पूरा पोजीशन क्लोज हो जाएगा या फिर जो भी हाँ थोड़ा बहुत ही होगा? सर थोड़ा बहुत ही Hello? होगा, पोजीशन उतना ही क्लोज होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ₹1,00,000 का पोजीशन लिया है आपने, ठीक है, ₹100 Right. पे लिया था, ₹90 का ट्रिगर था। अब वो ₹1,00,000 के पोजीशन के लिए आपने मान लीजिए हमें 40,000 का मार्जिन दिया था, हेलो, ठीक है। राइट, अब वो मान लीजिए आपके पास कैश बिल्कुल नहीं है, 90 का ट्रिगर आ गया, हेलो, तो कस्टमर क्या, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उतना ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा जिससे कि आपकी बची हुई पोजीशन जो है ना, वो बची हुई पोजीशन पे 40% मार्जिन पे आपका, सो सिस्टम विल ओनली क्लोज दैट पोर्शन ऑफ पोजीशन जिससे कि आपका बचा हुआ पोजीशन जो है उस पे 40% मार्जिन के हिसाब से इनिशियल मार्जिन आ जाए। सो इट विल हेलो, नॉट okay, sir. क्लोज द फुल Got it. पोजीशन। सो आई होप दैट Got it. आंसर्स द क्वेश्चन। Okay, got it, got it. सर Yeah. मेरा एक क्वेश्चन है, शेखर बोल रहा था। हेलो, हेलो राहुल सर। हेलो, So I think once You can please mute all, and I think we can take the questions whoever is raising hand, because that is something which will help us to yeah, sir. address the If query from each one of them. correct, sir. If please also there are a lot of queries coming on the chat box and on the by the participants as well. So it is becoming difficult to take the questions. So I'll So what just we can do unmute is, all. Plazi, Sorry, yeah. no, so Plazi, what we can do is chat box पे जो भी questions है ना, we can just have a note of it. You can copy that, Yeah, and yeah. we will share you the revert for each of the questions, and you can then share the same to the respective channel partners, and they can convey the client. Sure, So sir. we I can think do it that would way. be great. Sure, sir. I think that राहुल would सर be great. मेरा एक क्वेश्चन है सर। हेलो, राहुल सर। हाँ जी। Go ahead, sir. Venkatram sir, ask the query. सर शेखर कुमार बात कर रहा था, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। सर क्लाइंट के पास अगर स्टॉक्स डीमेट फॉर्म में है आईसीआईसी में तो उसको प्लेस कर सकता है, तो अगर उसके पास बॉन्ड हो, गवर्नमेंट बॉन्ड हो, तो उसको प्लेस कर सकता है कि नहीं? नहीं, फिलहाल गवर्नमेंट बॉन्ड प्लेस नहीं कर सकता, और आपको अगर वो लिस्ट देखना है ना, तो यू कैन रेफर द स्टॉक लिस्ट इन शेयर्स मार्जिन। वहाँ पे पूरी लिस्ट है, क्या क्या प्लेस कर सकता है वो हमने पूरा दिया हुआ है वहाँ पे, तो यू कैन रेफर दैट पेज। सर उसमें तो बॉन्ड तो दिख नहीं रहा कोई भी, न प्राइवेट तो कंपनी का भी वही नहीं। मैं आपको बोल रहा था कि बॉन्ड हम अलाउ नहीं करते हैं प्लेजिंग के लिए, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। सो वी आर ओनली अलाउइंग कस्टमर्स टू प्लेज लिस्टेड शेयर्स व्हिच इज 1000 प्लस शेयर्स, एंड द लिस्ट इज देयर इन द शेयर्स मार्जिन स्टॉक लिस्ट। बट सर उसके सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने के लिए बताता है, सपोज उसके पास 60 लाख का बॉन्ड है तो उसको बता रहा है कि 51 लाख का क्रिएट कीजिए लिमिट उसी बॉन्ड पे। आपको अगर क्रिएट लिमिट पे जा रहे हैं, क्रिएट लिमिट पे आपको दिखा रहा है इतना लिमिट क्रिएट हो सकता है, तो फिर वो स्टॉक लिस्ट में होगा। नहीं है सर, मैंने उसको रिक्वेस्ट भी भेजा बट एनएसडीएल से नहीं आ रहा वो ओटीपी में। See, it's better that we take client specific query separately, and like Plaza, you can please moderate the call accordingly. सर मेरे दो तीन Sure, sir. So okay, one second. Hello. Rahul, Naveen again. Ji. At that time I was on mute. Actually, I could not. Naveen sir, can I speak? Naveen sir. सर यहाँ पे क्वेश्चंस लीजिए प्लीज। Hello, this is Anuj here. I also have a question. Just cue me. Let me know when I can speak. Anuj sir, Naveen you can sir? please continue with the question, Anuj sir. Okay, so Yes, sir. We are not able to hear you now. now can you hear me? Yes, sir. Your voice is audible. Please, sir. Yeah, sir. So Please now go what ahead. happens is typically, let's assume I've got 1 million as my limit in MTF. Okay, so I start buying shares. So if I start buying shares, I buy them in, let's say I buy 50 shares today, I buy another 100 tomorrow, I buy another 200 tomorrow in SIP mode. So eventually what happens is you place 3 different, stocks. I mean the same stock, but in 3 different records. Right, sir. Now when I go to sell them, I have to sell each one of them individually. I can't sell all of them in one basket. That's true, sir. Is that right? That is correct. Why do we do that? That means I end up paying brokerage price.
Sir, brokerage is always levered on the value of stock. So even if you sell 3 Yeah, or but 1, my quantity is brokerage का not ही लगेगा. minimum quantity, right? Hello, now you can hear me? Sir, what I'm saying is Hello? brokerage is always charged on value. तो आप No, चाहे that I understand, but you have a minimum charge, right? हाँ, so we have a minimum brokerage charge, right? तो मेरा Yes, sir. तीनों में minimum brokerage लग जाता है. हाँ Because सर, my वो quantities are लगेगा very because small. I agree sir, like that will happen that way. सर उसमें तो तो उसका कुछ मतलब करो. मैं बोलूँगा कि दूसरा हाँ सर. apart from the inconvenience, also in this screen, there is no indexing. So if I want to say all my CDSL buys, I will see them only one by one. There is no index here. So there is a option to search the stock. अगर आपको CDSL buy check Yeah, करना I है ना, can type CDSL in stock code and view, then it will show me only CDSL. right sir. But suppose I want to see all the rows together, then I should be able to index like your portfolio does, right? नहीं, all the rows together means sir, all the stocks. Well, all the buys and all other buys also. So suppose I bought Bata 3 times, I bought CDSL, हाँ जी, I हाँ bought जी, Gujarat Gas. If I bought हाँ them जी. in 3 different occasions, then I want them Right. clubbed together in different rows. Got it sir. So here now what So we are doing is alphabetically ये जो Bata open के position 3, CDSL के 3 and Gujarat Gas के 3. मैं समझ गया सर आपका बात. तो इसमें हम सर क्या करने वाले हैं अभी, हम ये जो ओपन पोजीशन पेज दिख रहा है ना, इसमें आप देखिए बहुत सारे अलग अलग कॉलम्स हैं. Right. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. इसको सिंप्लीफाई करते वक्त हम इसमें सॉर्टिंग का ऑप्शन भी डाल रहे हैं. आप स्टॉक कोड पे क्लिक करेंगे सॉर्ट हो जाएगा, ट्रेड डेट पे क्लिक करेंगे सॉर्ट हो जाएगा. सो वी आर पुटिंग दिस सॉर्टिंग ऑप्शन विच विल मेक द लाइफ इजियर एंड इट विल हेल्प यू टू प्ले अराउंड विद दिस फ्लेक्सिबिलिटी. Okay. और उस पर हम Yeah, जो that's आपका what we टोटल wanted. प्रॉफिट लॉस है, हाँ, सो दैट इज समथिंग विच वी आर डूइंग एंड हम उसमें आपको डेज गेन भी दिखाने वाले हैं. अभी आपको जो प्रॉफिट लॉस दिख रहा है आपको वो अभी तक का दिख रहा है, पोजीशन क्रिएट करने से लेके अभी तक का. सो वी विल आल्सो बी शोइंग यू हाउ मच हैव यू made in one single day, days gain, overall gain, so everything we are showing. So that page may take some time, but I'm sure it will add a lot of value. No, so do you also include the MTF cost, interest cost भी डालते हो उसमें? इंटरेस्ट कॉस्ट उसमें नहीं है सर. इंटरेस्ट कॉस्ट का अलग से आता है बिकॉज आपका कैपिटल गेन में इंटरेस्ट कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कॉस्ट. सो इफ यू फाइल फॉर द कैपिटल गेन calculation, so interest is not considered as a element while calculating capital gain. That was capital correct. Your position was correct 2 years ago. It is no longer correct. loss. Sorry sir. Now since dividends are taxable. Okay. Now since dividends are taxable since last 2 years, earlier 10 lakh tak exemption tha, so there was a gray area. Now dividend is taxed as normal income, which means any expense incurred by you in acquisition of the shares, and that includes STT, interest paid on the share, has to be and should be included in the cost of the share. सर मैं आपसे अलग से बात करता हूँ इस बारे में टू टेक मोर क्लैरिटी ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड देन वी विल चेक विद आवर फाइनेंस टीम आल्सो. So I will connect with you separately. Plaza, if you can please share me the details. This I am 100% sure. So you should add that cost into this. So sir, what we do is you can route your question through a channel manager, and then the channel manager will contact us and we'll provide the resolution. Okay. So I think sir, we should wind up the So session. now let him Rahul. contact me, na? Don't leave it as a. Sir, Don't Anuj leave sir, the you can hanging. please. Hello, Anuj Anuj sir. आप अपना मोबाइल नंबर हाँ. चैट बॉक्स में डाल दीजिए. विल कनेक्ट यू. Yeah, sir. Rahul, one more point to what Anu sir has asked out. Well, since we are revamping the page, please allow a page where or a downloadable So option of the MTF. Naveen, sorry, I would like to cut you here, but we can connect with Rahul sir offline on this. Okay, for all your queries. Okay, so I think sir, we should wind up the session since we've already exceeded the timeline. So we have taken a note of all the queries that has been kept unanswered on the chat box, and we'll sir Rahul sir, I'll reach out to you for all the queries, and we can provide a revert, and I'll distribute it to all the channel managers. They'll further give it to all the partners. Okay, sir. Please, that will help. You can share this with both Darshan and Sure, me. sir. We will share you Sure, the sir. reward.
And in case if Yeah, they have thank any you. other questions, so I'll request all the participants that we'll organize similar sessions, maybe in coming months or maybe in coming weeks. So there you can ask your questions again. And Okay. before we end this call, I will sincerely thank each one of you for sparing Yes. your time and joining this call. I hope that we were able to add value and we were able to provide you clarity what you wanted. And thank you so much for joining in. Thanks. Yeah, thank you all the participants for taking our time and joining the session. And thank you very much Rahul sir and Darshan sir for conducting the session. The session was quite informative, and I hope all the partners and as well as the channel managers have benefited from the session. Okay. So I have, thank you Anuj sir, thank you for your feedback. Okay, all right. Thank you very much all. And we'll